Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Today, our topic is psychosocial aspects of aging. As we know that in advancement in medical and social improvement, everybody want to live long life. Nobody want to die. All achievement and progress result only to enhance the quality and frequency and time and other characteristics of our life. Medically achievement improve in healthcare and living condition means people can now expect to live longer life than ever before. Today, the proportion of elderly people in the world population is on the increase mainly because people are living longer today than in the past. The rise in the proportion of the older people has been accompanied by an increase in researches on the intelligence and personality of the elderly and the psychosocial aspects of ओल्ड एज। यानी कि हर इंसान जो है वो हमेशा ये चाहता है कि वो ज़िंदा रहे और एक लंबी ज़िंदगी पाए, और जितनी भी एडवांसमेंट हो रही हैं मेडिकल प्रोफेशन में, उनका मेन फोकस जो है वो ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर और लंबे अरसे तक चलाना है। एवरी मैन डिज़ायर टू लिव, नो मैन वांट टू ओल्ड। यानी क्या हो जाता है ओल्ड एज में, क्या प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज की, किस वजह से इंसान हमेशा यंग रहना चाहता है। आज हम डिस्कस करेंगे उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि एज के साथ साथ बढ़ती हैं, जिसकी वजह से इंसान हमेशा यंग रहना चाहता है। तो उसमें सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि जो ये स्टडी है ये किन स्पेशलिटी में आती है। जेनेटोलॉजी द स्टडी ऑफ एजिंग, जीरियाट्रिक केयर ऑफ एजिंग पीपल, यानी कि एजिंग प्रोसेस को वक्त के साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती हैं, कैसे डिक्रीज़ का ये अमल शुरू होता है, इन सब को हम इस स्पेशलिटीज़ में पढ़ते हैं। Late adulthood or old age usually refer to the portion of human life cycle that begin at age 65. Whenever the elderly may live, they are recognized by characteristics, physical changes. Ages in generally characterized by the decline ability to respond to stress, increase imbalance, and increase the risk of mortality and morbidity. Aging refers to the age of cells. The aging process of senses in characteristics by a gradual decline in the functioning of all the body system. The biological changes of the aging occur at a cellular level and affect the immune, muscular skeleton, reproductive system, cardiovascular, gastrointestinal problem, respiratory problem, endocrine and central nervous system. All system functions decrease with the passage of time, and in old age these functions are functioning decrease. Now we discuss the main neurological changes of aging. The weight and volume of the brain decrease by 5% between age of 30 and 70, by 10% by the age of 80, and by 20% by the age of 90. The ventricle and the subarachnoid spaces also increase in size proportionality. ये वो चीज़ें हैं जिनके में इनके वॉल्यूम में, इनके शेप में तब्दीली से बहुत से साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज है वो एक अनलाइक स्टेज ऑफ लाइफ कहलाती है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो
in the frontal and temporal lobe decrease with age. Nerve cell loss occur in the cortex, hippocampus, substantia nigra, and cerebellum. These links between neurofilaments and microtubule cellular portions can accumulate to the from the neurofibrillary tangles in the some nerve cells. Senile plaques are found in the normal aging brain in the neocortex, amygdala, and hippocampus. These are the basic biological and neurological changes which occur in old age, और यही वो changes हैं जो उसकी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स को मुतासर करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को मुतासर करते हैं। इसी वजह से इन प्रॉब्लम की वजह से इंसान भी ये चाहता है कि वो यंग रहे। जब ये बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस में जो सबसे मेन चीज़ है वो आईक्यू डिक्लाइन है। आईक्यू पीक एट 25 years of age, plateau until 6 to 70, and then decline. Performance IQ drop faster than verbal IQ. This may be due to reduced processing speed or to the fact that verbal IQ depend largely on familiar information, while performance IQ involve novel information. Then problem solving deterioration due to decline abstract thinking ability and increased difficulty in applying information from one situation to another situation. Short-term memory does not alert while aging. Working memory, however, shows a gradual decrease in capacity, and this is worse with increased complexity of task and increased memory load. Long-term memory decline expect from remote events of personal and emotional significance, which may be recalled with great clarity. There is a typical pattern of psychomotor slowing and impairment in the manipulation of new information. Well-rehearsed skills such as verbal comprehension show little or no decline. Given the physical and cognitive decline seen in the aging, a surprising finding is that emotional experience improve with age. Older adults are better at regulate their emotion and experience negative emotion less frequently than a younger adult. To keep cognitive functioning and attitudes flexible, the brain must be exercised. The elder brain is as capable as the young brain of growing new connection between cells with use. Researchers has reported evidence of increased dendritic branches in healthy aged human brain, which suggests the brain remains plastic even old age. Many scientists have discovered that cognitive functioning of the brain in the elder can be maintained, trained, and even improve with training and environmental enrichment. ये दोनों चीज़ों का कनेक्शन है कि जब बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उन बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से इंसान की ओवरऑल साइको सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह के हम ऑलरेडी कहते हैं कि हर वो स्टिमुलस जो किसी भी इंसान की सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, वो डिजीज़ में लेबल हो जाती है। तो एजिंग में अगर हम थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ बहुत क्लियर होती है कि ओल्ड एज में इंसान की सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, तीनों डायमेंशन डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको अगर ये कहें कि ओल्ड एज इज़ अ डिजीज़ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डिक्लाइन की तरफ जा रही होती हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है वो है कि ओल्ड एज में जो चीज़ बढ़ती है वो इमोशनल एक्सप्रेशन है, यानी कि ये वो वह चीज़ है जो ओल्ड एज में बढ़ती है। बाकी तमाम ज़िंदगी के बॉडी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि
इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब इसे किस तरह गुजारा जाए, किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह इस ओल्ड एज को हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज एंड डिजीज रिलेटेड डिसेबिलिटी, हाई कॉग्निटिव एंड फिजिकल फंक्शनिंग कैपेसिटी, एक्टिव इंगेजमेंट विद द लाइफ, यानी कि इस एज में बहुत सी चीज़ें जहाँ कम होती हैं वहाँ बढ़ती में हैं, रिलेशन बढ़ते हैं, जो है वो इंसान का स्टेटस चेंज होता है। बहुत सी चीज़ें जहाँ कम हो रही हैं, अपनी डिक्रीशन की तरफ जा रही हैं, वहाँ बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ इसके सोशल इम्पैक्ट होते हैं। सोशल इम्पैक्ट में जो ओल्ड एज का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है लॉस ऑफ स्टेटस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ स्पाउस डेथ। These are three main losses which our individual has to face in old age. Next, especially in our society, in old age, जो लोग होते हैं वो काम से पीछे हट जाते हैं, अपनी ऑक्यूपेशन लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो इनकम है वो कम हो जाती है, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेडिकल, एक तरफ से मेडिकल प्रॉब्लम बढ़ती है, दूसरी तरफ से जो इन चीज़ों की रेमेडी है, यानी कि इंसान अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़ाहिर है जो कुदरत की तरफ से बीमारियां आ रही हैं वो तो एक स्ट्रेस है, लेकिन उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट ना मिले, उनकी हैंडलिंग ना हो, बजाते खुद एक अलग अजाब है। तो हमारी सोसाइटी में जो ये देखने में आया है कि ओल्ड एज में जहाँ बहुत सी बीमारियाँ बढ़ती हैं उनके इलाज की कैपेसिटी कम हो जाती है, जबकि ये चीज़ें दूसरी यूरोप कंट्री में नहीं है। ये हमारे स्पेशल ईस्ट में है कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसकी इनकम कम होना शुरू हो जाती है, इनकम कम होती है वो दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। जब दूसरों पे डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है तो उसे अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक अलग क्लस्टर में शामिल हो जाता है जो कि एक पूरा स्ट्रेस का क्लस्टर होता है। जबकि मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अहम चीज़ यही होती है कि इंसान के जो सोशल स्ट्रेसर हैं स्पेशली इन ओल्ड एज वो कम से कम हो, जबकि ये सारी चीज़ें वेस्ट में नहीं दी जाती। वह वेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पेनफुल चीज़ होती है वो आइसोलेशन, यानी कि ओल्ड एज में लोगों को ओल्ड हाउस में भेज दिया जाता है और उनके बारे में एक स्टिग्मा बन जाता है कि ये अब काम के नहीं रहे, इनकी अब बात में वो वज़न नहीं है, इनको अब दुनिया की समझ नहीं है, जनरेशन गैप है। यानी कि वो एक सही बात भी करेंगे लेकिन उसके साथ एक स्टिग्मा उनकी एज का लग जाता है कि ये ओल्ड है, लिहाजा ये जो बात करेगा वो अपनी जनरेशन के लिए करेगा। तो अब ये चीज़ रिलेट करती है कि ओल्ड एज जो होती है वो फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ साथ जो है वो मेंटली भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये एक मिथ है। ठीक, फॉर सक्सेसफुल एजिंग बिसाइड्स फिजिकल फैक्टर पर्सन रिक्वायर्ड टू फ्लेक्सिबल एंड डेवलपिंग न्यू कोपिंग स्किल टू अडॉप्ट द न्यू चेंजेस ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि जब इंसान यंग होता है, बच्चे छोटे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने फैसलों में जो है वो आज़ाद होता है, अपनी मर्जी के हिसाब से अपने जो फैमिली को रन कर होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उसकी इंडिपेंडेंसी कम होती है और डिपेंडेंसी शुरू होती है तो जो लोग, जो बुज़ुर्ग इस स्टेज पे इस तब्दीलियों को महसूस करते हैं उनका ओल्ड एज में जो इज़्ज़त मकाम वही रहता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो रिजिडिटी में हो जाते हैं, वो क्या हमारे माशरे में देखने हैं कि जो एक बुज़ुर्ग है उसका जो चारपाई है वो गराज में डाल दी जाती है और घर की एक्टिविटी से उन्हें अवॉइड ही किया जाता है कि ये किसी एक्टिविटी में शामिल ना ही हो क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई रोला डालना है। तो ये क्यों होता है? तो ये मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड एक सजेशन है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एज बढ़ रही है तो उस एज के साथ साथ जो बॉडी चेंजेस आ रही हैं उसके अलावा जो सोशल चेंजेस आ रही हैं उसके हिसाब से न्यू कोपिंग जो स्ट्रैटेजी है वो सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए,
कोई वर्कशॉप होनी चाहिए, या जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद इस तब्दीलियों को खुद स्टडी करें और अपने आप को जो न्यू रोल है उसमें ढालने की कोशिश करें, ताकि उनका जो एज का ये पीरियड है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लॉस किया है, उसकी वजह से कम उनकी ये एज डिस्टर्ब ना हो। तो होता क्या है कि एज के साथ साथ स्टडी शो कर रही है पॉजिटिव रिलेशन विद ऑफ द फैक्टर, मतलब रिलीजियस फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है, कोपिंग स्किल है, ये चेंज होते हैं, इनमें तब्दीलियां आती हैं। तो इन तब्दीलियों को सही तरीके से एडजस्ट करना चाहिए, इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो ओल्ड एज में इन चीज़ों को, इन बिलीफ को फ्लेक्सिबली अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको कम प्रॉब्लम होती है इस एज में उनकी निस्बत जो अपनी रिजिडिटी के बेस पे, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आते अपने थॉट्स में, अपनी डीलिंग्स में, अपनी थिंकिंग में, तो उनको इस एज में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अब बहुत सी प्रॉब्लम्स जहाँ ओल्ड एज में होती है, वहाँ एक मेन प्रॉब्लम जो होती है वो हो जाती है कि इस एज में इंटीग्रिटी एंड वर्सेस डिसअपेयर, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्सन ओल्ड एज ब्रिंग्स विद इट अ को डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड बाय integrating attitude, beliefs and experience so that they fit together comfortable and form a coherent whole. This result in a feeling of satisfaction with a well-being life. Such integrity is most likely to occur among those who have cared for people and have adopted themselves to different triumphs and disappointments. Without this integrity, the elderly individual is filled with a growing sense of despair and a fear that time is running out on life. This despair manifested in the form of persistent irritability, disgusting, or a negative fear of death. Those who do not achieve a sense of integrity and wholeness may develop one of the hallmark of successful aging, wisdom. This wisdom forms the base of seeking achieve about complex life problem from the elderly in the culture such as over. अब करना क्या है, इस एज में क्या करना चाहिए कि बेहतर से बेहतर टाइम गुजर सके? रीएश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन केयर, एम्पैथी बाय सर्कल एंड असिस्टेंस, information care session, mobilize necessary social events and emotional support देनी चाहिए पेशेंट को, उसकी उस स्टेटस को समझना चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, और पेशेंट से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस करना चाहिए। ये चीज़ रिसर्च ने शो की है कि जो लोग ओल्ड एज में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, किसी न किसी एक्टिविटी में रहते हैं, उन पे ओल्ड एज के जो इम्पैक्ट हैं वो उनकी निस्बत कम होते हैं, जो ओल्ड एज को एक्सेप्ट करके अपनी हर लाइफ के डायमेंशन से पीछे हट जाते हैं। तो इस एज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कोर है, जो रूह है, जो हम कह सकते हैं कि बेहतरीन ओल्ड एज जो है पीरियड को गुजारने के लिए सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है चेंजेस इन रोल। कौन सा रोल? फैमिली में रोल, अपने ऑक्यूपेशनल स्टेटस में रोल, अपने सोसाइटी में रोल, कि जो रोल उसको अब नया मिला है वो अडॉप्ट कर ले, ना कि थॉट्स उसके यंग एज के हों जबकि एक्चुअल स्टेटस उसका ओल्ड एज में हो। बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज create a conflicted situation. So accept the changes, accept the degradation of the system and accept the social status, then you can spend a successful aging. Thank you very much.